خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا، وہاں قریش کے لوگ جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے تھے۔ بد اخلاق دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا کو پریشان کرتے رہنے کا کام پر لگا دیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو 2 مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد کا بھائی تھا۔ وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ذہین تھا اور اس میں بالغ پن تھا۔ خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے کو عمارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جائے اور اسے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا، اور جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا، اسے تم جانتے ہو، یہ عمارہ بن ولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوں گے کہ بنو ہاشم نے، جس کے تم سردار ہو، ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کے رکھو گے تو تمام عمر فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بناؤ گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا۔ کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی قیمت کتنی چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا کہ تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل۔ قریش کے دونوں سرداروں نے جواب دیا، ہم محمد کو قتل کر دیں گے۔ یہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ محمد کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں۔ بے شک محمد کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ ویسی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ ہی اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے میں، لیکن وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ جائے گا۔ نہیں نہیں، اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔
वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा को रकाना के हाथों गिरा कर आपका तमाशा बनाया जाए। मक्के के यहूदी खास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। इन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल खुदा को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक रोज रकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि इसके करीब से एक बड़ी हसीन और खूबसूरत जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वैसी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका क्या मतलब होता है? रकाना पहलवान ने पूछा, कौन हो तुम? और अरमन यहूदी की बेटी, रकाना ने कहा, लड़की के कंधों पर हाथ रखकर और इसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है? क्या मेरी ताकत? तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया। सबत बिन अरमन ने पीछे हटते हुए कहा, तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है? रकाना ने गर्ज कर पूछा। सब कहते हैं, सबत बिन अरमन ने कहा। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा। रकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना ही अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। रकाना ने रसूल खुदा को कुश्ती के लिए ललकारा। इसने कहा, मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल खुदा ने रकाना को ललकार के जवाब में कहा, ये एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा ना भूल जाना। मक्के में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रकाना पहलवान और मोहम्मद एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी, और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल करेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्द वाजन और यहूदी हजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह होकर आए, क्योंकि इन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वैसी पहलवान रकाना रसूल करीम के मुकाबले में उतरा। इसने रसूल खुदा पर तंजिया निगाह डाली और आप पर बपती कसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रकाने की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि कहीं वो बेखबरी में कोई दाव न खेल जाए। रकाना आपके गिर्द ऐसे घूमा जैसे शेर अपने शिकार के गिर्द घूम गया हो और अब इसे खा जाएगा। हजूम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे और दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। इन्होंने अपनी तलवारों के दस्ते पर हाथ रखे हुए थे। फिर ना जाने क्या हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला कि आपने रकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रकाना जख्मी शेर की तरह उठा और घुराकर आप पर हमलावर हुआ। आपने फिर वही दाव खेला और इसे दोबारा पटक दिया। वो उठा तो आपने इसे तीसरी बार भी पटका। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल ना रहा। रकाना सर झुकाकर अखाड़े से निकल गया। हजूम पर सन्नाटा तारी हो गया। अब मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। चचा रकाना, रसूल खुदा ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा करो और यही ऐलान करो कि आज से तुम मुसलमान हो। रकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया। ये ताकत जिस्मानी नहीं थी। खालिद ने नखलस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा, रकाना को यूं 3 बार पटकना तो दूर की बात है, इसे कोई पछाड़ भी नहीं सका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर खालिद के ज़हन में निखर आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। इसके बाद आपने जो रूप इख्तियार किया था, इसमें खालिद आपको नहीं पहचानता था। नबूवत के दावे के बाद
खालिद की आप के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। वो आपके साथ दो दो हाथ करना चाहता था, लेकिन वो रकाना की तरह पहलवान नहीं था। वो मैदान जंग में लड़ने वाला और लड़ने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था। लेकिन इस वक्त मुसलमानों की फौज ना थी। जब मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ इनका पहला मार्का हुआ, इस वक्त खालिद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि इस मार्के में शामिल नहीं हो सका था। इसका इसे बहुत अफसोस हुआ था। ये मार्का बदर का था, जिसमें 313 मुसलमान इस्लाम ने 1000 कुरैश को शिकस्त दी थी। खालिद दांत पीसता रह गया था, लेकिन इस रोज जब वो एक नखलस्तान में लेटा हुआ था, इसे ख्याल आया 313 ने 1000 को किस तरह शिकस्त दे दी। इसने शिकस्त खाकर आने वाले कुरैश के लोगों से पूछा कि मुसलमान में वो कौन सी खूबी है जिसने इन्हें फतह याब किया था। खालिद उठ बैठा और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खादो खाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजीशनें और मार्कों के दरमियान दोनों की चालों को लकीरें बनाने लगा। बाप ने इसे फन और हरब व ज़रब का माहिर बना दिया था। बचपन में इसे घड़सवारी सिखाई, लड़कपन में इसे अक्खड़ और मुंह जोर घोड़ों को काबू लाने के काबिल बनाया। नौजवानी में वो शहसवार बन चुका था। उतर सवारी में भी वो माहिर था। इसका बाप ही इसका उस्ताद था। इसने खालिद को सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि सलार बना दिया था। खालिद को जंगो जदल इतनी अच्छी लगी कि वो लड़ने और मरने के तरीकों पर गौर करने लगा और जवानी में फौज की क़यादत के काबिल हो गया था। इसे बदर की लड़ाई में शामिल ना हो सकने का अफसोस था और वो इंतकाम के तरीके सोचता रहता था। लेकिन अब इसकी सोचों का धारा किसी और तरफ चल पड़ा था। मक्के से रवानगी से कुछ दिन पहले वो इस सोच में खो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना पहलवान को 3 बार पटका था और बदर में आपने महज 313 मुजाहिदीन से 1000 को शिकस्त दी थी। ये कोई और ही कुव्वत थी। लेकिन बदर के मार्के के बाद इसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी। मुसलमान मार्का बदर में कुरैश के बहुत से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए थे। कुरैश के सरदारों के लिए तो ये सदमा था ही, इसका बहुत बड़ा असर खालिद ने कबूल किया था। इसे याद था कि जब बदर का मार्का लड़ा जा रहा था तो मक्के में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी कि मार्के का अंजाम क्या हुआ। मक्के के लोग बदर की सिमत देखते रहते और इधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतेह की खबर सुनाएगा। आखिर एक रोज एक सुतर सवार आता नजर आया। लोग इसकी तरफ दौड़े। सवार ने अरब के रवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया था और वो रोता आ रहा था। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसा ही किया करते थे। और वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो इसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है और जिनके अजीज लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर इनके मुतल्लिक पूछते थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए हैं। शिकस्त खुर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखजूम के अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था जंगी कैदी हो गया था। अबू सुफियान जो कुरैश के सरदारों का सरदार था और इसकी बीवी हिंदा मौजूद थी। कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतल्लिक बता ए कासिद, हिंदा ने पूछा। तुम्हारा बाप अतबा अली और हमजा के हाथों मारा गया है, कासिद ने कहा, और तुम्हारा चचा हिबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज से गालियां दी, फिर बोली, अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद का खून खोल रहा था। कुरैश के 70 अफराद मारे गए और जो जंगी कैदी हुए इनकी तादाद भी इतनी ही थी।